So, what is sadism exactly? No one knows. To be honest, there is a typical meaning to it. Sadism refers to the enjoyment people get, but मैं ऐसे नहीं समझता कि peoples को enjoyment मिलता होगा from being sadistic. It is some kind of excitement, not happiness. When you smoke, most of the people smoke, so you don't feel happy, you feel some different hormones that make you feel relief. Okay, so sadism also, there is no pleasure associated to it, but there would be some other kind of thing. So आज का टॉपिक है सैडिज्म इन रियल लाइफ एंड सैडिज्म सोन इन. ये वीडियो मैं बस इसलिए बना रहा हूँ बिकॉज आई सो प्रिटी गुड रील. You just want to see him dead because he's a sadist, because you are a self-appointed avenger. You are nothing but a sadist man. So ये रील बहुत लोग आप लोगों ने देखा होगा. So after that reel I decided to make a video on this movie and particularly in life. To be honest, I will consider myself as a sadistic person. On the scale, everyone is a bit sadistic person to person, but the intensity of sadism differs. Like मैं इतना भी sadistic हूँ कि मरेगा और मैं खुश हो जाऊँगा, हाँ मर गया. बट जब कोई मेरे से कम मार्क्स लाएगा एग्ज़ाम में, आई विल बी अ बिट हैप्पी कि अरे भाई मैं जीत गया. नॉट जीत गया, मेरा भी कम मार्क्स ही आ रहा है. सो लाइक आई विल बी लाइक चलो अच्छा है, ही डजंट ही इज़ इक्वल टू मी और समथिंग, ऐसा टाइप का फीलिंग. एक सेकेंड. देन sadism movie is like basically surrounded, वो पूरा मूवी 4 मेन कैरेक्टर पर बेस है. जूरी नंबर आपका 3rd, who is a like self-appointed menace of society. Jury number 8, who is kind man. Then jury number 10, who is a old racist and a fascist. And jury number 5, who was born as poor. He is an immigrant, as you say. So he was not the immigrant, but yeah, anyway. So उस स्टोरी में होता है कि एक इमिग्रेंट होता है. मे बी दैट्स jury number what's his name, jury number 5. So ये मूवी का अगर समरी दूँ तो बेसिकली दिस होल सिचुएशन इज़ जस्ट इमेजिनेशन कि कोई किसी को मारा है या नहीं मारा है. इट इज़ जस्ट बेस्ड ऑन द इमेजिनेशन बिकॉज देर इज़ नो वीडियो एविडेंस एज पर अवेलेबल फॉर ऑडियंस टू गेस इज दिस रॉन्ग और इज दिस राइट. बट what is there available is audio and how the movies goes, तो वो मूवी का हीरो है, उसके हिसाब से ही दैट. मैं यहाँ पे ये डिस्कस करने नहीं हूँ कि वो उसको मारा है या नहीं मारा, बिकॉज एज अ व्यूअर आई ऑल्सो डोंट नो. बिकॉज jury number 8 has like presented data and facts, but that doesn't also give me any evidence. ठीक है, he's a jury, he knows how to manipulate data as per his will and as per his liking. So this whole thing could be a facade for I know, but I'm not here to discuss that. I'm here to discuss कि either this movie reflects something on the in our life or something else. क्या हमारी लाइफ में सैडिज्म है ऑफ कोर्स है, बट कितना. अगर आप रास्ते से जा रहे हो और कोई कुत्ता को कोई मारे, आप खुशी फील तो नहीं करोगे ऑफ कोर्स. अगर आप कुछ ज़्यादा ही घटिया आदमी तो करोगे भाई. बट मैं सिचुएशन में देख सकता हूँ कि सम डे आई विल लाफ. मतलब 90% ऑफ टाइम आई विल बी लाइक कि नहीं गलत कर रहा है, बहनचोद मारो इसको. बट
there would be some times where I would laugh like lol, कुत्ता को मार रहा है, कुत्ता चिल्ला रहा है, lol, funny चीज हो गया. But moving aside, I'm moving aside from the point. So वो मूवी में जो भी हुआ is just the imagination of Zuri 8. He cultivated a story around the boy. The boy is shown in black and white. His emotion is not shown, so we don't know he is guilty or not. But the jury 8 has presented some data as, you know, the person, the attendant who testified against him was not wearing glasses, had a limp body, and that passing the train that could not उसको पता नहीं चलता कि हाँ भाई उसका बेटा ही उसको अपने बाप को बोला कि हाँ मारूंगा, और मार दिया, क्योंकि उसका बाप मरा था उसका लड़के का, और लड़का कन्विक्टेड था एज की प्राइम कल्प्रिट. बट वो अभी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट जूरी 8 कुछ कुछ डाटा प्रेजेंट करता है. द मेन प्रॉब्लम इज जूरी 7 जो था, ही वॉज इन बिट ऑफ अ हरी टू वॉच अ गेम. सो पहला लाइफ में ये पता है कि हम लोग जैसे काम not work, but you know, the independence of our time, the independence of having us of the liberty of having time, decide the response we have to certain sadistic elements of the society. That's a good thing I've said. The liberty of having time, decide our response to seeing some sadistic element in the society. Imagine आप काम पे जा रहे हो, ठीक है. इन द मूवी ही वॉज लाइक गोइंग टू वॉच अ गेम विथ हिज सन. सो दैट इज असाइड. मैं यहाँ पे अर्जेंसी का बात करता हूँ बिकॉज देयर वॉज समथिंग एल्स टू बी डन. अगर आप रास्ते से जा रहे हो एंड देयर इज समथिंग लाइक एक बंदा एक बुढ़े को मार रहा हो, ठीक है, आप इंजॉय नहीं करोगे, बट आपको काम पे जाना है, नहीं तो आप फायर हो जाओगे. ऐसा अर्जेंसी है आपके पास, ऐसा अर्जेंसी है, तो आप क्या करोगे, अपने काम पे जाओगे, बिकॉज दैट इज़ योर सर्वाइवल, दैट इज़ योर अर्निंग, दैट इज़ योर फूड ऑन द टेबल, दैट इज़ द क्लोथ टू योर फैमिली, शेल्टर टू योर फैमिली, द क्लोथ टू योर चिल्ड्रंस. सो आप अपने घर पे जाओगे. सो पहला एलिमेंट ये है कि हम लोग किसी भी चीज़ इस वीडियो कॉन्टेक्स्ट में, टू सैडिज्म वी रिएक्ट टू द अर्जेंसी ऑफ आवर टाइम, कि हम लोग के पास उतना अफोर्ड कर सकते हैं कि नहीं टाइम या नहीं. पहला पार्ट ये. सॉरी. पार्ट 2 जूरी 8 पे हम लोग आते हैं. ही वॉज अ रेसिस्ट पर्सन, यू नो. he thought of every creature, like every poor people lies, they are scum of the worst, they lie, they conspire and they kill for money. मतलब वो रेसिस्ट था इन द सेंस कि उसे नहीं लगता कि लोग सब मारते थे टू सर्वाइव और टू गेट मनी. दे आर जस्ट कम. वो लोग डर्टी हैं, वो लोग यही करेंगे, वो लोग ही ये सब करते हैं. क्रिमिनल्स आर मेनली पुअर. I can also make a video on that, why most of the criminals are poor. No, that's not exactly the case, but that could be the case. 90% of criminals are poor. But हम लोग का सोसाइटी पे रिप्रेजेंट करता है. क्या कोई बंदा अंदर से अगर रेसिस्ट हो, फैसिस्ट हो, एंड ही ऑलरेडी हैव अ परसेप्शन ऑफ समवन, नो मैटर व्हाट यू डू दैट विल नॉट चेंज फॉर हिम. जैसे कि आप बिहारियों के साथ बहुत गंदा बिहेवियर होता है इन अदर स्टेट्स, ठीक है, और एक बंदा जो बचपन से ऐसे पला बड़ा और सोचता हो कि बिहारी लोग सब गंदे होते हैं, दे आर नॉट सिविल. दैट्स ऑल्सो द केस, क्योंकि बहुत जगह पे नहीं भी होते हैं, मतलब होते हैं. मैं बहुत ट्रेन में ट्रैवल किया हूँ, सो आई नो कि मोस्ट ऑफ द बिहारी आर नॉट सिविलाइज्ड. बट कोई ऐसे सोचे कि लोग सिविलाइज नहीं होते हैं और गंदे होते हैं, डर्टी होते हैं, बट सो दे विड हैव अ बाउंड्री, दे हैव अ सेट अ बाउंड्री बिफोर टॉकिंग टू अ बिहारी. They will not interact with them friendly, they will see them as inferior. That is not sadism. This is sadism at some extent, because they pity themselves कि I should not like include myself with him. I mostly should exclude myself. I do not interfere with his minglings. He thought himself from being a delicacy,
you know, a person who approaches that person, a Bihari, for this video. अब मूविंग 5, जूरी 5 जो खुद एक गरीब आदमी था. ऐसा होता है ना कि खुद जो गरीब है वो दूसरा गरीब को भी अच्छा समझता है कि हाँ ये अगर चोरी किया है तो देयर वुड बी अ सिम देयर ऑफ कोर्स देयर इज अ रीज़न, बट दैट डजंट जस्टिफाई हिम गोइंग अराउंड एंड किलिंग एंड स्टीलिंग. बट जो लोग गरीब, जैसे कि कोई गांव से बहुत लोग होते हैं, एक गांव से आप जिस गली में हो उस गली में अगर कोई बंदा, ठीक है, कोई बंदा गलत काम करता है और गरीब हो, आप बहुत गरीब हो, ठीक है, नॉट गरीब यू नो लोअर क्लास, और वो बंदा चोरी करता है, ठीक है, तो अगर आपसे कोई ऐसे पूछेगा, आपको कुछ नहीं करना, आपको पुलिस में सेटिस्फाई नहीं करना, आप बस जानते हो कि चोरी किया. बट अगर ऐसे अपने किसी दोस्त से बात करो, उस बंदे को आप नहीं जानते हो बट जानते हो कि वो भी इसी लोकेलिटी का है, तो आप क्या बोलोगे? हाँ कि वो गलत किया बट देयर वॉज अ रीज़न, यू नो. आप वो बात लाओगे, देयर वॉज अ रीज़न टू इट. एंड that's the perception of us versus them. कि ऑफ कोर्स आप जस्टिफाई नहीं कर सकते ना कि वो क्यों किया. वो पुअर था तो हाँ ठीक है. या आप खुद एक, जैसे कि आप खुद एक स्कूल में हो, ठीक है, आप क्लास में हो, ठीक है, एक क्लास का बंदे किसी के साथ जाके लड़ाई किया है, फिर आपका जब होगा तो आप उस बंदे को डिफेंड ही करोगे ना, अपने क्लास के बंदे को, कि नहीं नहीं सही किया, क्योंकि देयर इज अ सेंस ऑफ अस वर्सेस देम काइंड ऑफ मेंटालिटी दैट इज बिल्ड इन गैदरिंग्स इन ऑल हायरार्की ऑफ सोसाइटीज. बिकॉज there is a hierarchy of society, there is upper middle class, lower middle class, and there is a divide, this thin margin of line that we cannot see. Just 10,000 is like the thin, just 10,000 ज़्यादा कमाओ और आप दूसरे ब्रैकेट में, 10,000 ज़्यादा कमाओ आप दूसरे ब्रैकेट में, तो उतना थिन लाइन है that decide our perception on someone. मैं कुछ नहीं बोल रहा कि ये सही है गलत है, मैं बस बता रहा हूँ कि मूवी क्या बोल रहा है और हम लोग के लाइफ में क्या हो रहा है. हम भी बिहारी है भाई. Jury number 5 or 11 and 9, they were just supporting actors. They were like खाली मोल्ड जिसमें पानी आप कैसे ही भर सकते हो. आप पानी या तो गंदा पानी भरो या साफ पानी भरो, वो लोग, द मेजोरिटी ऑफ अस आर लाइक देम. हम लोग को जो पॉलिटिशियन बोलते हैं हम लोग मान लेते हैं कि अब ये आएगा तो अब ये सही काम करेगा, वो आएगा तो वो सही काम करेगा. बिकॉज यू नो 5, 11, 6, 8 and 9 are the majority of us. हम लोग हैं वो, that is us in the movie. वो हम लोग हैं. हम लोग का परसेप्शन हर कोई चेंज कर सकता है. हम लोग का कैसे परसेप्शन, कोई भी एक बंदा आता है और बोलता है कि अब मैं आ गया हूँ, अब मैं ठीक करूँगा सबको. आपको पता है ये सब, बिकॉज एवरीवन हैज सीन इट. ठीक है, देन मूविंग ऑन. Zuri 8 is like the, you know that महात्मा टाइप्स लोग जो जो हीरो का साथ देते हैं, जो बताते हैं कि अगर हीरो सही बोल रहा है तो उसके पीछे का रीज़न डालते हैं. आप ऐसे लोग को जानते होंगे ऑफ कोर्स. बट मूविंग ऑन टू जूरी 3, हु वाज इन फैक्ट अ सैडिस्टिक पर्सन इन ऑल मीन्स. और वो हम लोग में से कोई भी नहीं है. द मोस्ट ऑफ द पीपल वॉचिंग माई वीडियो और मैं खुद भी, मैं इतना सैडिस्टिक्स नहीं हूँ. बिकॉज उसका खुद का लाइफ में प्रॉब्लम था जूरी 3 का. बिकॉज ही हैड अ बैड बॉन्डिंग विथ हिज सन, सो ही डिसाइडेड टू अवेंज दैट बॉन्डिंग, the unfortunate bonding he has with the son. He wanted to avenge that feeling on projecting a different kind of father's punishment onto a son's life. मतलब एक और बेटा अगर सफ़र करेगा बिकॉज ऑफ हिज फादर, तो उस वाले बाप को अच्छा लगेगा कि मेरे बेटे के साथ गलत होता है तो मैं बेटा भी को ऐसे करूँगा. वो इनफैक्ट वो चाहता था वो काम अपने बेटे के साथ करना, टू लाइक किल हिम. ऐसा वो दिखाया भी है जब वो अपना पिक्चर फाड़ता है. बट वो बस अपने बेटे को मार नहीं सकता बिकॉज ऑफ द बाउंड्रीज ऑफ द सोसाइटी, बट ही हैड द पावर टू किल समवन एल्स सन, और उसका फ़ायदा अच्छे से उठा रहा है. एंड दैट इज समथिंग बैड. आपकी लाइफ में खुद कितना भी प्रॉब्लम हो, दैट शुडंट मीन कि आप उसका उस फीलिंग को अवेंज करने के लिए दूसरा का लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करे. जैसे कि बहुत लोग का ब्रेकअप होता है, मेरा भी हुआ है. और आपका मोस्टली ब्रेकअप कैसे होगा मैं बताऊँगा कि आपके गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड, मैं अपने बारे में बात करता हूँ. मैं गर्लफ्रेंड की लाइफ में एक दूसरा बंदा आ गया था एंड से लेफ्ट.
but that doesn't made me no, that made me hate him and hate her for like very strong time. I hated them both. I wanted them gone. I never wanted them to see. I never wanted to see their faces again. But that is not the fact here. But after time it got better. But ये मेरा उसके पर नहीं है, मैं बस बोल रहा हूँ कि आपके साथ जब वो होता है तो आप वो दूसरे के साथ भी करना चाहते हो. You want to make someone else cheat on their boyfriend because of you were cheated on. आपके पास आप बहुत लोग अच्छे भी होंगे कि नहीं करना चाहते होंगे, बट मोस्ट ऑफ ये बहुत गंदा एग्जाम्पल हुआ क्योंकि मैं नहीं करना चाहता था ये. आई वॉज रियली हार्ट ब्रोकन. वो चलो, अगर जैसे कि आपका कम मार्क्स आया, ठीक है, दैट इज़ टू सिंपल ब्रो, और आप चाहते हो कि सबका खराब मार्क्स आए, ये तो बहुत सिंपल हो गया. दैट फीलिंग ऑफ अवेंजेंस, लाइक ऐसा टाइप का फीलिंग नहीं आ रहा है, ठीक है. जैसे कि आपकी मदर के साथ आपका लड़ाई हुआ, ठीक है, आप तो आप चाहते हो कि आपका दोस्त भी अपनी मम्मी के साथ फाइट करे एंड दैट्स ओके. वो आपको सलाह देते हो, आप ये नहीं, मैं आप नहीं चाहता कि आप लोग ही करें. आई एम जस्ट सेइंग कि देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी दैट हैपन्स, राइट. सो दिस इज sadism in real life versus sadism shown in 12 Angry Men. Thank you. This was just a blabbering session as usual, and in the next video I will talk about why most of the criminals are poor, matlab why the majority of the criminals who are criminals are poor, and then I will talk about One Piece. The peak is coming and you will love it. Thank you.